BLLB, and BBA programs. GIFT is approved by All India Council for Technical Education, Ministry of HRD, Government of India for Management Courses, and the Bar Council of India for the law courses. The institute is NAAC Grade A, accredited in its second cycle. Now let's start the beautiful day and this event by taking the name of Lord Ganesha and request him to make this event a successful. I am Shri Kaur, your host for the day, on the behalf of Vidyadhar International Business School, is pleased to cordially offer a very warm welcome to our requested chief guest, ACP Shri Kamal Singh Meena sir, and the trainees of Delhi's Special Police Unit for Women and Children, and invite Shri Kamal Singh Meena, Assistant Commissioner of Police District Rohini, New Delhi, and professional team of Special Police Unit for Women and Children, Honorable Vice Chancellor Shri Anirudh Sarjindal, Sir Honorable Director, Dr. Professor Vikas Lal Sir, Honorable Dean, Corporate Affairs, Ms. Prachi Jindal Ma'am, Head of IQAC, Dr. Professor Umesh Chaturvedi, and Dr. Vinay Maitri to inaugurate the self-defense training camp by finally the land. It is my pleasure to thank the team of Delhi Special Police Unit for Women and Children also, who are running a very positive trend of training females, the safety techniques which is needed for our of the women and girls to safeguard themselves against the arising case of violence and crimes. Thank you so much for spending your time for us. The self-defense training can strengthen the girls, students for their self-protection and women empowerment through these self-defense training camps. The self-defense training camp is being witnessed across all the educational institutions where the training has been imparted by the Delhi Police through Sir Shakti Self-Defense Camp, which is commendable. Going by this agenda, under IQAC, Vidyadhar International Business School is conducting self-defense camp in collaboration with Delhi's Special Police Unit for Women and Children. But before we begin, I would like to invite our Honorable Director, Sir. Okay. Assistant Commissioner of Police, Mr. Kamal Singh Meena, keep quiet. I'm not training you at present. The training will begin after some time. But do listen to what I want to say. Okay? And we must behave ourselves in front of the guests. And that's the need of the hour. So I take this opportunity of welcoming the Assistant Commissioner of Police, Mr. Kamal Singh, for this particular session regarding training of our girl students. We have Station House Officer, Mr. Pankaj Kumar with us, who looks after the traffic management of this particular area. The relevance of this training for all girl students, I would like to have some points on this. If you remember, in 2012, there was a Nirbhaya case. Right? It must have been there in the school. But it was a much highlighted case which brought to the limelight the safety of the girl child, right? The safety of the girls and the women in our society. The type of brutal
damage that was done to that girl, the rape that was done, and which also brought to the forefront the vulnerability of the woman in the society and the type of crime that was there in the society at that point of time. That case changed the whole course of law. It was said that at the college level, at the school level, girls should be trained for self-defense. At any point of time, if there is an attack on you and you feel that a particular person is not behaving in a proper manner, there are certain ways in which you must protect yourself. First thing is, if required, you must carry some sort of equipment by which you can attack on the person whom you feel is not behaving properly with you. Second thing is to protect yourself through some training which we are trying to organize today, right? If you are able to save yourself, somewhere you are making the society strong. The girls and the women form 50% of our society, and law says whether it is a boy or a girl, whether it is a man or a woman, all are equal. Article 21 goes in for giving equality to all, right? God has made us different. God has given this privilege to you to give birth and to increase the population of the mankind, right? So you help us move on with the legacy from one generation to another. But that doesn't mean that males have the right to misbehave with you. So understanding this, we felt that there is a need at present in our institution that the girls should be trained on this, and hence we are very much grateful to the ACP and the SHO for organizing this event at Geeta Rattan International Business School. I would also like to give special thanks to our Honorable Vice Chairman who has been kind enough to permit this type of training for our students. And not the least, Mr. Vinay Maitri, who has always taken care of all such types of events, and he has been running around to arrange this particular training. So special thanks to you. We look forward for words of wisdom from the Assistant Commissioner of Police, Mr. Kamal Singh Meena, who is here to introduce the training program to you and what's the relevance and what the police is doing, especially for the girls and the ladies of the society. So I welcome you for this particular event, and I will request the host to come forward and do the necessary honors. So I really appreciate you staying on the stage to provide this happiness to the ACP of the film. Can you please be on the stage, sir? मान सम्मान दिया मेरे को यहाँ पर बुला के, वैसे साहब ने से कुछ बता दिया, फिर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा लेडीज किसी से कम नहीं, किसी पे चल के देख लो, लेडीज हमसे आगे है। कुदरत ने इस धरती पे लेडीज एक ऐसी है जो अपने बच्चे से लात निकालती है, दूर निकालती है, पता है सभी को। और पैसा है जो पेट भर लाख खाए, ये ना एक लेडी नहीं कैप्सी होती थी। और आज के टाइम में शायद हो सकता 50 साल बाद लेडीज का इलाज दुनिया में। अच्छा लगा, लेडीज में ताकत तो है ही, उसको यूज नहीं करना था। ये जुड़ो कराटे से केरल में हर में बदमाशों से किसी भी फील्ड में जाए लेकिन जी सकती है अगर हिम्मत ना हारे तो। बट हमारी लेडीज श्रम कर जाती है, लज्जा होती है, श्रम होती है कि बदनाम ना हो। हमारे पहलवान देश के अच्छे अच्छे लेडीज है, वो बेचारी डरती है करने का, चोट लग जाए शादी नहीं होगी। बट हमारे देश में गाड़ी लाने वाली लेडीज बहुत काफी कैपेसिटी है, जिसके अंदर अगर थोड़ा तो भार है कुंडली के अंदर जिस तरह लिहाज छोड़ के काम करे तो मर्दों से कम नहीं रहेगी। आज ये प्रोग्राम अच्छा लगा, अभी देखते हैं जुड़े करने के बारे में। थैंक यू वेरी मच।
We are sure many of us are going to follow your words in our life. I would like to stay on the stage and we would request Director Sir to present the saplings, which we have already done. Let's have a fun session and not a very serious one. Shall we start the training? Thank you so much. Head Constable Ms. Vandana and Priya ma'am, can you please have you on the stage? यहाँ पर उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण और आप सभी का सादर अभिनंदन। हम दिल्ली पुलिस की स्पेशल पुलिस यूनिट वुमेन एंड चिल्ड्रन नानकपुरा से आए हैं। जैसा कि सर ने बताया था, हम दिल्ली में महिलाओं और बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं। यह यूनिट सन 2002 से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रही है और अभी तक 13 लाख से ज्यादा महिलाओं और बालिकाओं को हम सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे चुके हैं, जिसके लिए नीमका बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी यूनिट का 2 बार नाम दर्ज हुआ है। और मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि सन 2022 में सिल्वर स्पोर्ट्स अवार्ड से भी यूनिट को सम्मानित किया गया। इस ट्रेनिंग के दौरान हम बताते हैं कि किस तरह से डेली रूटीन में यूज होने वाली चीजें जैसे बुक, पेन, दुपट्टा, हेयर पिन, नेल्स, जो चीजें हम अपने साथ कैरी करके चलते हैं। देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम कोई वेपन कैरी करके चलते हैं कि कभी अगर जरूरत होगी तो इस हथियार से मैं अपनी सुरक्षा करूंगी। हम क्या बातें नहीं कहते। Everybody, please pay attention. बैठ जाओ सर, बैठ जाओ। अभी लंबा टाइम होगा तो आप लोग खड़े खड़े परेशान हो गए। हम डेली रूटीन में यूज होने वाली चीजें जैसे बुक, पेन, दुपट्टा, हेयर पिन, नेल्स, जिन चीजों को हम कैरी करके चलते हैं उन्हीं से याद सेल्फ डिफेंस करना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अपर पार्ट नेक से ऊपर, मिडल और लोअर पार्ट। इसी तरह कमांड दी जाएगी। सबसे पहले पंच बनाना सबको आता है, हाथ ऊपर करेंगे, पंच बनाएंगे। फर्स्ट फोल्ड, सेकंड फोल्ड और थर्ड पे लोग लगाना है। जो 2 फिंगर्स हैं इन पे थंब का लोग लगाना है। क्लियर? पंच ऐसे ही बनाना है। आप कहीं भी अटैक कर रहे हो, अपर, मिडल या लोअर पार्ट पे अटैक कर रहे हो, आपको यही पंच बनाना है। ठीक है, अटेंशन। अटेंशन, क्लास रेड। सीखो द पोजीशन, राइट लेग राइट साइड, रेडी, अप, मिडल पंच 1 2, अपर पंच 1 2, लोअर पंच 1 2। अटेंशन। सबसे पहला हथियार है हमारी आवाज। क्या होता है, जैसे हमारे साथ कोई बदतमीजी होती है तो हम जैसे बस में जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, हमारे साथ बदतमीजी हो रही है और हम सटकते जाते हैं, मतलब बढ़ावा देते हैं सामने वाले को। तो सबसे पहले तो आवाज निकालनी सीखनी है आपको, क्योंकि हमें इस चीज की प्रैक्टिस ही नहीं होती है। मैम आवाज निकाल रही है, इसीलिए निकाल रही है तो हमारे अटैक में पावर आ रही है। दूसरा, अब ये दीवार है, इसके पीछे किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, वो आवाज ही नहीं निकालेगी तो क्या इतने लगा कोई नहीं जाएगा। तो सबसे बड़ा हथियार है हमारी आवाज, तो हमें अपनी आवाज को निकालना है। तो एक तो अपने अटैक को पावरफुल बनाने के लिए आवाज निकालना है, दूसरा ये एक प्रैक्टिस भी है कि कभी भी भगवान ना करे हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम अपनी आवाज निकाल पाए। पोजीशन, बोथ हैंड नकल अटैक, 1 2, दोनों हाथों का देखो, अपर और मिडल पंच। ये स्टमक पे अटैक, अपर नोज पे। हमें क्या करना है, अपने हार्ड पार्ट से सामने वाले के सॉफ्ट पार्ट पे अटैक करना है। अभी ये हमारा हार्ड पार्ट हो गया और नोज सामने वाले का सॉफ्ट पार्ट। एक बार सोच के देखिए, अगर ये नकल्स पावर के साथ हम पंच बनाते हैं और सामने वाले की नोज पर पड़ेंगे तो उसका क्या हाल होगा। लोअर पंच लोअर पार्ट के लिए,
ऐसे ही बोथ एंड नकल अटैक, दोनों हाथों का टाइट पंच बनाना है और ये जो दो कोलर बोन है इन पे अटैक करना है। पाम थ्रस्ट, 1 2 अपनी हथेली के मोटे वाले हिस्से को आगे निकालना है। अगर कोई बदतमीज है आपके साथ, बदतमीजी कर रहा है, देखो कई बार तो क्या होता है गलती से भी हो जाता है, अगर भीड़ भाड़ है गलती से टच हो गया तो ऐसा नहीं है कि हमने सेल्फ डिफेंस सीख लिया और हमें इस चीज का गलत इस्तेमाल करना है, ठीक है? कि कोई हल्का सा गलती से टच हो गया तो उसके आँख कान नाक सब फोड़ डाले, ऐसा नहीं। भगवान ने हमें सेंसेस दिए, हमें पता चल जाता है कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है, गलत है या सही है। अगर गलत इंटेंशन हम एक बार टोकेंगे तो बंदा पीछे हट जाता है और 2 कदम पीछे जाके खड़ा होता है। और जिसकी गलत इंटेंशन है, जो घर से ये सोच के निकला है कि आज किसी ना किसी को टारगेट बनाना है, वो फिर दोबारा करता है। तो ऐसी स्थिति में आपको जवाब देना है। तो क्या करना है इसमें, अपने ये जो मोटे वाला हिस्सा है इसको आगे निकालना है और शोल्डर पे पुश करना है पावर के साथ। इसको हम चिन पे भी पुश कर रहे हैं। अगर बदतमीजी कर रहा है तो उसकी जीभ कट जाएगी, फिर बदतमीजी ना आपके साथ करेगा ना किसी और के साथ करेगा। अपर फिंगर टिप चलेगा, 1 2 आप जो देखो गर्ल्स होती है नेल्स बढ़ाने का शौक होता है, तो सेल्फ डिफेंस में ये भी एक हथियार का काम करते हैं, ठीक है? ये हमने नेल्स नहीं भी बढ़ा रखे, आवाज आ रही है पीछे? तो हमने अगर नेल्स बढ़ा भी नहीं रखे हैं तो भी ये जो फिंगर्स हैं टाइट करके हम अपोनेंट की आईज में अटैक कर सकते हैं, थ्रोट पे कर सकते हैं। यहाँ मार के देखो एक बार, टाइट फिंगर्स करके, फिंगर्स टाइट करके यहाँ एक बार मार के देखेंगे, होता है कुछ? नहीं हो रहा? तो यहाँ पे आ जाइए एक बार। अगर टाइट फिंगर करके हम यहाँ अटैक करते हैं तो बहुत तेज लगती है, ठीक है? और ये तो हमारी खुद की बॉडी है, अपनी बॉडी से प्यार होता है, तो हल्का सा टच किया दर्द हुआ हम रुक गए। और जब कोई हमारे साथ बदतमीजी करता है और हम गुस्से के साथ अटैक करते हैं तो उसमें 10 गुना पावर बढ़ जाती है। मिडिल फिंगर टिप्स अटैक, 1 2 अब सिचुएशन ऐसी है कि सामने वाले ने आपको, कोई दीवार है, कोई पेड़ है, ऐसे पीछे लगा दिया, ठीक है? स्पेस कम है और आप पूरा हाथ नहीं खोल पा रहे, ना पंच कर पा रहे, तो आप क्या करोगे, आधा हाथ खोलोगे और रिब्स पे या सोलर प्लेक्सिस पे अटैक करोगे पावर के साथ। अब यहाँ भी करके देखिए, आप बैठे बैठे ही यहाँ मारिए, रिब्स पे मारिए एक बार, ये टाइट फिंगर करके, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं, हल्का सा दूर से लेके आओ, होता है कुछ? बहुत तेज लगती है यहाँ पर, ठीक है? तो ये अटैक करना है। लोअर फिंगर टिप्स अटैक, 1 2 लोअर फिंगर टिप्स अटैक लोअर पार्ट के लिए, 2 फिंगर आई अटैक, 1 2 इससे सामने वाले की देखने की जो क्षमता है वो भी हमेशा के लिए जा सकती है। तो ये जो अटैक है आपको तभी यूज करना है जैसे बातें नहीं, देखो आप लोग ऐसी बातें करोगे तो फिर हमारा भी मन नहीं करता है। हम इतनी दूर से आप लोगों को सिखाने के लिए, सर हमारे जो ऑफिसर्स हैं इतना बिजी शेड्यूल है, लेकिन आप लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए आए हैं, तो प्लीज आप कंसंट्रेट करके देखेंगे और सुनेंगे। तो ये 2 फिंगर आई अटैक, ये कमांड से ही पता चल रहा है कि आईज में अटैक करना है, ठीक है? उस सिचुएशन में करना है, जैसे सिचुएशन आपको भाई किडनैप कर लिया जाएगा या फिर रेप कर दिया जाएगा या कोई भी ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई आप कभी जिंदगी में नहीं कर सकते, ऐसे सिचुएशन में आपको ये अटैक करना है। इससे देखने वाला अंधा भी हो सकता है हमेशा के लिए। शॉर्ट पंच पोजीशन, रेडी, अप, फ्रंट शॉर्ट पंच, 1 2 इसमें भी अगर क्लोज पड़ा है तो आप नोज को हिट करोगे। टेंपल शॉर्ट पंच, 1 2 इसमें क्या करना है, एक हाथ से कान बंद करना है, दूसरे हाथ से अटैक करना है। एयर प्रेशर बनता है और कान के पर्दे भी फट जाते हैं। पोजीशन चेंज, अपर साइड शॉर्ट पंच, 1 2 अब जरूरी नहीं कि जो अटैक है वो सामने से ही हो, अटैकर जो आपके साथ बदतमीजी कर रहा है वो साइड में भी हो सकता है, तो उसके लिए अपर साइड शॉर्ट पंच नोज के लिए, लोअर साइड शॉर्ट पंच लोअर पार्ट के लिए। मिडिल सुकी, 1 2 अभी हमने पंच से अटैक किया, आप सुकी से अटैक करेंगे। पंच का फेस हमने ऊपर कर दिया और नकल से स्टमक पे अटैक करेंगे। चिन सुकी, 1 2 ये इतना पावरफुल अटैक है, चिन पे अटैक करना है, इससे आप सामने वाले का जबड़ा भी हिला सकते हैं। टेंपल सुकी, 1 2 कोलर बोन, ये कोलर बोन पे अटैक करना है। सेंट्रल अटैक, 1 2
आराम से। पंच के साथ साथ एल्बो से भी हम अपना डिफेंस कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमने पंच से अटैक किए, ये हमारा हार्ड पार्ट था। अभी हाथ में एल्बो हमारा हार्ड पार्ट है। हमें क्या करना है, हमें सामने वाले को झुकाना है और उसकी बैकबोन तोड़ देनी है। पोजीशन चिन एल्बो है, 1 2, ये चिन पर अटैक करना है। बैक साइड रीच। अब कोई पीछे से, जैसे भीड़ भाड़ वाली जगह है, बसेस है, मेट्रो है, पीछे से कोई बदतमीजी करता है तो आप एल्बो से अटैक करेंगे। दूसरे हाथ का सपोर्ट लगा देंगे तो उसकी पावर और बढ़ जाती है। रेडी करके दिखाएंगे, रेडी 1 2। अब अटैक के साथ साथ सेल्फ डिफेंस में डिफेंस करना भी बताया गया है। अगर कोई आपके सर पे लाठी, डंडे या चाकू से वार करता है तो आप ब्लॉक्स के जरिए उसके अटैक को रोक सकते हैं। देखिए, अगर हमारे सर पे चोट लग जाती है तो सर फूट सकता है और डेथ भी हो जाती है ना, डेथ भी हो सकती है। और हाथ से हम उसको बचा लेंगे, सर को बचा लेंगे, हाथ टूट जाएगा तो महीने 2 महीने में ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैंने वार किया इनके ऊपर, मेरे हाथ में डंडा ले रखे, रोक दिया। ठीक है, ये है अपर फेस फ्लो। इसके बाद पेट के डिफेंस के लिए अगर पेट में कोई पंच मारता है तो मिडिल फ्लो, 1 2। अगर कोई साइड से अटैक करता है 1 2 तो साइड ब्लो करके हम उसको, लेकिन आप ये सारी चीजें, अटेंशन, ये सारे अटैक जब सीख पाएंगे, हमारी 10 डेज की ट्रेनिंग होती है, हमने मैम से भी बात की है। जब 10 डेज की ट्रेनिंग में हम आपसे प्रैक्टिस करवाते हैं तो उससे हम ये नहीं कहते कि आप लोग फाइटर बन जाते हो, लेकिन जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। और कॉन्फिडेंस ही होता है हर सिचुएशन से निपटने के लिए। अगर हमारे साथ कोई बदतमीजी होती है, कॉन्फिडेंस नहीं है, हम घबरा जाते हैं तो फिर नहीं हो पाता। तो वो जो ट्रेनिंग होती है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक बार अभी प्रैक्टिस करवाएंगे आपसे, सब प्रैक्टिस करवाएंगे। चलिए आप लोग खड़े हो जाइए। ओके, सबसे पहला अटैक हमें क्या करना है, देखो अपने हैंड को, लेग को, इन्हीं को हथियार बनाना है। ये प्लेट बनती है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, शोल्डर पे अटैक करना है। राइटर्स है स्टॉप, और तेज आवाज निकालेंगे। राइटर्स हैंड्स डाउन। अब स्टांस लेंगे, ठीक है, सिकुदाजी पोजीशन, राइट लेग राइट साइड। देखो लेफ्ट लेग की कोई मूवमेंट नहीं है, राइट लेग राइट साइड में लेके जाना और स्टांस लेना है, ठीक है। चलिए पोजीशन बनाइए, आप पोजीशन बनाइए, पैर खोलिए, नीचे जाओ और यहाँ हाथ रखेंगे, अपने रिब्स के पास हाथ रखेंगे। नहीं सीखना आप लोगों को, बंद करोगे, सीखना है तो अपना मुंह बंद करो प्लीज। यहाँ पर हाथ रखेंगे रिब्स के पास, मिडल पंच, मिडल पार्ट पे। आप जब आप अटैक करोगे तो माइंड में ये इमेज करो कि सामने कोई बदतमीज खड़ा, उसने बदतमीजी की है मेरे साथ, मैं पलट के जवाब दे रही हूँ, ठीक है। मिडल पंच, आवाज निकालो, वही रखो पंच। जब स्टार्ट करेंगे तो राइट हैंड से, टारगेट पॉइंट आपकी ही हाइट का कोई बदतमीज है आपके सामने और उसके मिडल पे, स्टमक पे आपने अटैक किया है। फेस नीचे करना है जमीन की तरफ। अपर पंच, अपर पंच करेंगे अभी। 1 2 3। जो हाथ रेस्ट पोजीशन में जा रहा है वो भी आपकी कमांड में रहेगा, ऐसे लटकाना नहीं है तो टूट गया, ठीक है। कमांड में रखिए, 3 3 9 10
नीज डाउन स्टांस बनाइए प्रॉपर। देखिए हाथों के साथ साथ पैरों को भी मजबूत बना रहे हैं। पोजीशन लोअर पंच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपर फिंगर टिप्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिडल फिंगर टिप्स है आधा हाथ खोलेंगे। अभी स्पेस इतना नहीं है कि आप पूरा हाथ खोल सको। अपोनेंट और आपके बीच में स्पेस कम है, आधा हाथ खोल के अटैक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टू फिंगर आइए अटैक 1 2 यहीं से ही स्मार्टली अटेंशन की कमांड मिलेगी तो आपको प्रॉपर कट मारना है और राइट लेग को मिलाना है। लेफ्ट की मूवमेंट नहीं की थी ना हमने। क्लास अटेंशन सिट डाउन प्लीज। अब ये बताइए कोई आपका हाथ पकड़ लेता है ये ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपको कैसे डिफेंस करना है बताइए। पैर से सबसे पहले जरूरी है कि हम अपना हाथ छुड़ाएं। देखो पैर से भी अटैक कर सकते हैं, लेकिन क्या करना है, दोनों हाथों की ग्रिप बनाई। ठीक है, आपको लेफ्ट साइड में छुड़ाना है, लेफ्ट लेग को लेके गए और पूरी पावर के साथ ट्विस्ट कर देना अपनी बॉडी को। और उसके बाद कोई भी अटैक जो भी हमने बताए थे वो आप कोई भी अटैक कर सकते हो। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे। अटेंशन। ठीक है, उसके बाद Sir, we would really appreciate if you come up and Dr. Vinay Maitri will give you memento for this event. किस समय आपने घर में एंट्री करनी है, किस समय घर से निकलना है। मैं डिमोरलाइज नहीं कर रहा कि आपको मैं मना कर रहा हूँ कि आधी रात मत होगी, पर फिर भी आपके पेरेंट्स बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए। दिस इज नॉट अ इजी थिंग। उनके दिल से पूछिएगा तो आप कम से कम ये तो समझा रहे, पर आपका जहां तक मुझे देख के लग रहा है कि आपकी शायद बातें खत्म नहीं हो रही या हंसी खत्म नहीं हो रही। बड़ा कीमती समय निकाल के हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो सीखने की कोशिश कीजिएगा और प्रॉपर इनके स्टेप को फॉलो कीजिएगा। ये स्टेप क्या समझा रहे हैं, नहीं आ रहा इनसे पूछिएगा। ये जिंदगी में मौके बार बार नहीं आते, ठीक है, और हमारे लिए हमारी जिंदगी सबसे कीमती है। जिंदगी में जिंदगी से कीमती कुछ नहीं है, ठीक है। और गवर्नमेंट इतना खर्चा कर रही है, आपको समझा रही है, पर फिर भी थोड़ा आप से नहीं सीख पा रहे हो तो थोड़ा ऊपर आके सीखो, इनसे पूछो पर्सनली, एक बार फील्ड में जाके एक बार इन्हें समझाओ कि मैं कईयों के स्टेप प्रॉपर नहीं बन रहे या कई बच्चे बच्ची से मजाक में ले रहे हैं, तो समझते तो बहुत बढ़िया। और कोशिश कीजिएगा जो भी आप फोटो ले रहे हैं कि जो बच्चा हंस रहा है उसकी जरूर फोटो, ठीक है, जो सिंसियरिटी से नहीं कर रहा। ठीक है, साइबर क्राइम भी बहुत ज्यादा फैल रहा है। ठीक है, आपने मोबाइल का कितना प्रयोग करना, ये आपके डिफेंस की चीजें सारी। ठीक है, ये नहीं कि हमारा ये जॉब का पार्ट है। अगर जॉब का पार्ट होगी तो गवर्नमेंट ने इस विषय में आपके लिए सोचा है, तब जाके हम आपके बीच हैं। तो समझिएगा, अगर कोई फैसिलिटी मिल रही है उसको सीखने की कोशिश कीजिएगा, घर पे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, वेरी गुड। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो अटैक सिखा रहे हैं इनकी आपको जरूरत भी पड़े। लेकिन आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, कान में लीड लगा ली और हमें अपनी सराउंडिंग का पता ही नहीं है। सोशल मीडिया पे हमारे बहुत सारे फ्रेंड हैं, उनसे चैटिंग चल रही है। देखो, हम सोशल मीडिया के विरुद्ध नहीं है, लेकिन हर जगह गुड इफेक्ट भी होते हैं और बैड इफेक्ट भी होते हैं। क्योंकि हम पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, हमारे पास डेली बेसिस पे ऐसे केसेस आते हैं। ठीक है, फेसबुक से केस हमारे पास आया था,
उसमें 2 साल पहले की बात है, पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई थी और हर ट्रेनर के पास भेजी गई कि आप लोगों को बच्चों के साथ ये चीज़ साझा करनी है कि ऐसे भी क्राइम होते हैं, आप लोगों को अवेयर रहना है। तो उसमें क्या हुआ था कि फेसबुक पे फ्रेंडशिप हुई, उसके बाद बातें चली, लड़का लड़की को मिलने के लिए बुलाता है और लड़की चली जाती है मिलने के लिए। जब वो जो एड्रेस बताया था वहां पर जब दरवाजा खटखटाती है, बेल बजाती है, तो एक अधेड़ उम्र का आदमी दरवाजा खोलता है। जब दरवाजा खोलने के बाद लड़की अंदर चली जाती है, उसको वो पानी ऑफर करता है और वो पूछती है कि वो लड़का कहाँ है जो फेसबुक पे देखा था उसने, जिससे बातें होती थी। तो वो कहते हैं कि वो अभी नहा रहे हैं, आप थोड़ा रेस्ट करो, पानी पी लो। वो पानी पीती है और पानी पीते ही बेहोश हो जाती है। उसके बाद जब उसको होश आता है तो एक नहीं 3 लोगों ने उसके साथ रेप किया था, क्योंकि हमारी खुद की बॉडी हमें पता चल जाता है ना कि कुछ गलत हुआ है। जब वो वहां से भागने की कोशिश करती है तो वो पकड़ लेते हैं और पत्थर से सर फोड़ फोड़ के उसको मार दिया जाता है। अब उसकी क्या मिस्टेक थी ये बताओ? एक तो अननोन रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही है, उसको एक्सेप्ट करना। देखो आप लोग यहाँ आ रहे हो, आपके पास कितने सारे दोस्त हैं, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, जिनको आप जानते हो उनको दोस्त बनाइए ना। लेकिन क्या ट्रेंड चला हुआ है सोशल मीडिया पे दोस्ती, जिसको हम ना जानते ना पहचानते हैं। अब उसने फोटो लगा रखी, जरूरी उसी की फोटो है। दूसरा, अगर वो कहीं जा रही है, मिलने के लिए जा रही है, तो कम से कम अपने घर वालों को नहीं बता रही, तो कोई तो एक फ्रेंड ऐसी होगी या लड़का या लड़की कोई भी जिसको ये बता के जाए कि मैं कहाँ जा रही हूँ। जब वो 7, 8, 10 घंटे घर नहीं पहुंची है तो जो पेरेंट्स है कहाँ कॉन्टेक्ट करते हैं? हमारे जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं उन्हीं से पूछते हैं ना कि वो आई नहीं है, कहाँ है। तो हो सकता है उसको बचा लिया जाता कि वो वहां पर गई है ना। तो कहीं भी जाते हो तो आप बताया करो कि कहाँ जा रहे हो, अपने घर पे बताओ। मैं तो ये कहती हूँ कि आप अब यहाँ आ रहे हो, किस लिए आ रहे हो? पढ़ने के लिए आ रहे हो ना। फिर टारगेट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। जब आप डिसिप्लिन में होंगे तो नहीं होगा कुछ भी आपके साथ। और बाकी हम आपको सेल्फ डिफेंस सिखाई रहे हैं कि अगर कुछ हो जाता है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो आप अपना बचाव कैसे करते हो। ठीक है, अभी हैंड ग्रिप देखेंगे। जैसे एक हाथ से दोनों हाथ पकड़ लिया, ठीक है, और आपको खींचने की कोशिश कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? दूसरा हाथ फ्री है, टेक्निक यूज करनी है हमें। ठीक है, दोनों फिंगर कहाँ है? सॉरी, फिंगर्स कितनी है? 8। ठीक है, और थंब कितने हैं? 2 हैं। तो ऊपर पावर ज्यादा है, नीचे ज्यादा है? नीचे ज्यादा है। अगर मैं नीचे छुड़ाऊंगी तो मुझे बहुत फोर्स लगानी पड़ेगी और पता नहीं हाथ छूटे या ना छूटे। तो मैं टेक्निक इस्तेमाल करूंगी। मैं क्या करूंगी? ये ग्रिप बनाया धोखा देने के लिए, नीचे लेके गई और पावर से ऊपर छुड़ा दिया। ठीक है, कितना ही पावरफुल आदमी हो सकता है पता लगने के बाद दोबारा हम जैसे घर जाके ट्राई करते हैं, एक बार पता लग गया तो हो सकता है बहुत टाइट पकड़ ले और हम भी वो पावर यूज नहीं कर पाते जो एक बदतमीज के साथ भाई हमें घसीटने का प्रयास किया जा रहा है, किडनैप करने की कोशिश की जा रही है। तो उस सिचुएशन में हम जो फोर्स लगाएंगे वो घर पे पेरेंट्स या भाई के साथ नहीं लगा पाते। लेकिन अगर आप ये टेक्निक यूज करते हो, ये करके नीचे लेके गए, उसको लगेगा नीचे फोर्स लगाएंगे वो, ठीक है, और हम ऊपर, और यहीं से ही हम पावर के साथ ये अटैक कर सकते हैं। ठीक है, अभी उन्होंने तो डिफेंस कर लिया क्योंकि हमें लग जाती है, ठीक है, सिखाते टाइम हमें एक दूसरे को लग जाती है, तो हमने टेक्निक बनाई कि अटैक के साथ साथ हम डिफेंस भी सीख रहे हैं। कोई अगर हमारे ऊपर सर पे वार करता है तो हम ऐसे बचा सकते थे, डिफेंस कर रहे हैं, सामने वाला ऐसे हाथ नहीं लगाएगा, उसका तो शरीर फुटेगा। फिर पावर से हमने बना रखा है, पावर के साथ आप नोज पे मारिए या सर पे अटैक कीजिए। उसके बाद कई बार क्या होता है, लड़के ने बदतमीजी की, ठीक है, और हम हिम्मत करके थप्पड़ मार देते। अभी ये एक बदतमीज है और मैं लड़की हूँ, ठीक है, तो मैंने ये इन्होंने बदतमीजी की और मैंने ये थप्पड़ मार दिया, तो इन्होंने वहीं पर हैंड ग्रिप कर दिया। होती है ऐसी सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में फिर हम है रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि मेरा हाथ छोड़, है ना, क्योंकि हमने मानसिकता बना रखी है अपनी कि वो ज्यादा पावरफुल है और दोनों हाथों से पकड़ रखा है। हमें भी दूसरा हाथ दिया है भगवान ने, उसका इस्तेमाल करना है। वही टेक्निक यूज करनी है, थंब अंदर है, फिंगर्स बाहर। क्या करना है? दोनों हाथों के बीच में से ये ग्रिप बनानी है। और क्रिकेट खेला है, देखा था है ना,
ये करना है और ये पावर के साथ करना है, ठीक है। इसके बाद अगर दोनों हाथ पकड़ दिए तो फिर वही टेक्निक यूज करनी है। थंब अंदर है, ये इसको नीचे लेके जाना, पावर से ऊपर छुड़ाना और आगे जाके ये टेम्पल शॉट पंच, सुक्की पंच कुछ भी कर सकते हैं जो आपको याद आए उस टाइम, ठीक है। अभी आप जैसे कॉलेज आते हो, स्कूल आते हो या फिर ट्यूशन जाते हो, कहीं भी जाते हो, बुक और पेन सबके पास अवेलेबल होता है या नहीं होता? तो ये भी सेल्फ डिफेंस के हथियार का काम करते हैं। देखो जितने भी अटैक बता रहे हैं आपस में अप्लाई नहीं करना, ठीक है। बड़े बच्चे हो, छोटे बच्चों को बताई जाती है ये चीजें, ठीक है। आपस में अप्लाई नहीं करना। घर में भाई के साथ लड़ाई होगी तो भी अप्लाई नहीं करना, ठीक है। बहन भाई की लड़ाई होती है ना, तो वहां भी आप लोगों को अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। ये सिर्फ उन लोगों के खिलाफ है। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी जेंट्स भी उपस्थित हैं, सब हमारे लिए आदरणीय है, ठीक है। दिल्ली पुलिस की ये मुहिम उन लोगों के खिलाफ है जो ईव टीचर है, साइको हैं, जिनकी मानसिकता खराब है, घर से ही सोच के चलते हैं कि हाँ किसी ना किसी को टारगेट करना है। तो उन लोगों को हमें ठीक करना है, क्योंकि पुलिस इतनी नहीं है ना कि हर लड़की के साथ, हर महिला के साथ एक पुलिस वाला है, पुलिस वाली लगा दी जाए। सुरक्षा खुद ही करनी है। तो ये देखो क्या है, पेन। हमें क्या करना है, खोल के और ये बंद कर लिया, ऊपर से इसको प्रेस करना है, मतलब कि भाई हमारी जो पावर है ये पूरी लगे। सबसे पहले कहाँ अटैक कर सकते हैं? सबसे पहले कहाँ अटैक कर सकते हैं? देखो बच्चे का ये पार्ट देखा है आपने, बहुत सॉफ्ट होता है, तो इस वाले पार्ट में हार्ड हो जाता है, लेकिन ये सेंसिटिव पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ अटैक करें लगातार। अब एक बार सोच के देखो कि है ना कि क्या होगा। उसके बाद कहाँ कर सकते हैं? गाल पे, यहाँ मार सकते हैं लगातार मारी। उसके बाद देखिए इधर नेक पे, ठीक है, चेस्ट पे, बाजू पे, रिब्स पे और पेट में कैसे मारेंगे? पूरा घुमा के ये पेट में भी मार सकते हैं। जब साइकिलिंग वगैरह करते हो, स्कूटी चलाते हो, कभी मक्खी या मच्छर हमारे मतलब आके लगता है ना, इतनी तेज लगता है। एक मक्खी भी इतनी चोट मारती है और जिसमें मतलब इतनी सॉफ्ट होती है। अगर पावर के साथ, ये मत समझो कि पेन है, अगर पावर के साथ आप अटैक करोगे तो ये भी एक वेपन का काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे हमारे पास की होती है, उसको भी हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन नहीं है, की है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे दुपट्टा है, आप दुपट्टा कैरी करके चलते हो, है ना, स्टोन छोटा रखते हो, बता देते हैं रखते हो कि नहीं रखते हो। चलिए बुक का बताती हूँ मैं, ठीक है। देखिए ये बाइंडिंग वाला हिस्सा, ये ओपन हिस्सा है, हमने ऐसे पकड़ना है इसको, ठीक है। सबसे पहले हम कहाँ अटैक कर सकते हैं बताओ? एक तो आपको अपनी पोजीशन लेनी है। देखो ये पोजीशन पावरफुल हो गई, ठीक है। आगे पीछे पैर कर लिए, ये हल्का सा करो, पावरफुल हो गई हमारी पोजीशन। सबसे पहले पावर के साथ सर में अटैक कर सकते हैं, ठीक है, फेस पे, ये नोज पे अटैक कर सकते हैं, और जो टेम्पल शॉट पंच किया था वो अटैक कर सकते हैं, चिन पे कर सकते हैं, ऐसे करके चिन पे कर सकते हैं। ये बाइंडिंग वाला हिस्सा, इसको कहाँ यूज कर सकते हैं बताओ? ले देखो यहाँ पर, यहाँ यूज कर सकते हैं। इसको रिब्स पे यूज कर सकते हैं क्योंकि ये टाइट है, और इसको इसके लिए आपको ना ये जो खुला हिस्सा है इसको पावर के साथ पकड़ना हो, ये अटैक, ठीक है। इनसे भी आप अटैक कर सकते हो। ये हमने आपको बताया। आप लोगों का कोई क्वेश्चन? दुपट्टा लेके आओ। दुपट्टा वाला बता रहे हैं आप लोगों का। हमने जो चीजें बताई वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ भी सकता है। देखो आप ऑटो में जा रहे हो, ठीक है, ऑटो वाला या टैक्सी वाला आपको गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है, आपको पता चल गया, आपने बता भी दिया, आप गलत डायरेक्शन
लेके जा रहे हो, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? कुछ नहीं, आपके पास अगर दुपट्टा है तो ये लिया और ये पीछे खींचेंगे। आप लोग क्वेश्चन करते हैं बच्चे की ऐसे तो टक्कर हो जाएगी, टक्कर हो जाएगी। और होता क्या है, जैसे कुछ भी आगे जानवर आ गया, कोई भी आ गया, ब्रेक पे पैर जाता है ना, अगर उसको भी हल्का सा ही लगेगा तो ब्रेक पे पैर जाएगा, ठीक है, रुकेगा वहां पर, हमें इतनी ही देर में वहां से बचकर निकलने का मौका मिल जाएगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अगर हमारे दुपट्टा हमारे ऊपर ही भारी पड़ जाए, जैसे ये लोग कर दिया यहाँ पर और आपको कंट्रोल पे करने की कोशिश कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आप कैसे बचाव कर सकते हैं? देखो उसके लोअर पार्ट पे मारेंगे और ये टेम्पर बॉल छूट गया ना, ठीक है। राइट साइड से तो राइट साइड से क्या करना है आपको? पंच बना लीजिए और ये हल्का सा बैंड होके लोअर पार्ट पे अटैक करना है, और फिर ये एल्बो से भी बताया था हमने, ये भी आप अटैक कर सकते हैं। आप अगर कोई आप पे वार करता है तो देखो ये हमारा हथियार है, हमारा बचाव, डिफेंस करेगा ये यही लोग करते हैं और इनको गिरा देते, ठीक है। ठीक है, नीचे गिर सकता है, आराम से देखेंगे। देखो मैंने अटैक किया इनके लिए, इन्होंने यही मेरे हाथ को लोग पैदल भी जा रहे हैं, ठीक है। कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है या ऑटो वाला आपको गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है, तो आपको क्या करना है? हिम्मत प्लस ऐप आपने डाउनलोड कर रखी है, आपको वो ऐप खोलनी है। खोलते ही उस पर एसओएस का बटन आता है। देखो सबसे पहले तो इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए एक तो आपको अपना नंबर देना होगा जो आप यूज कर रहे हो, और एक नंबर आपको अपने घर वाले में, जैसे फादर का नंबर, ब्रदर का नंबर, जब भी आप कहीं बाहर जाते हो और आपको लगता है कि भाई कभी मुझे परेशानी होगी तो ये आदमी हेल्प के लिए सबसे पहले पहुंच जाएगा, तो उसका नंबर देना है आपको। 2 नंबर दे दिया आपने, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। सेटिंग में आप देखना इसमें पूरा दिया होगा। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब भी हम इसको ओपन करते हैं तो इसमें नीचे कोने में आता है SOS लिखा हुआ, उसको जब हम बटन प्रेस करते हैं तो उसको प्रेस करते हुए एक अलर्ट मैसेज, जो नंबर हमने दिया है अपने से, जो अल्टरनेट नंबर दिया है उनके पास, और एक दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में हमारी कॉल पहुंच जाती है। दिल्ली पुलिस की तरफ से आपके पास कॉल आएगी कि आप ठीक हो, आप कोई परेशानी है, आपका हालचाल पूछेंगे। अगर आप ये बोलते हो कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने तो सिर्फ एक ट्राई करने के लिए कॉल की थी, ठीक है, ट्राई कर सकते हैं हम एक बार बार ट्राई करेंगे तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पुलिस भी इतनी फ्री नहीं है ना कि बार बार आप करते रहोगे ट्राई। तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो। उसके बाद जैसे आप किसी परेशानी में हो, आपने परेशानी के लिए वो SOS के बटन को प्रेस किया है, तो अगर बता देते हो कि भाई मैं पहुंच गई हूँ या मुझे ये परेशानी है, तो आपकी लोकेशन भी जाती है वहां पर। 30 सेकंड के करीब की वीडियो भी बनती है, जब आप उसको बटन को प्रेस कर रहे हो तो 30 सेकंड की वीडियो भी जाती है। अगर आप फोन नहीं उठा पाते, ऐसी सिचुएशन में है, ठीक है, क्योंकि आपके पास कॉल आ रही है और आप लोगों की निगरानी में आप नहीं उठा पा रहे, तो जो आपकी लोकेशन है उसको ट्रैक किया जाता है, और जो नियरेस्ट PCR वैन होती है, देखो हर इलाके में होती है ना PCR वैन, तो वो आपकी हेल्प के लिए भेजी जाती है। अगर आप वहां से निकल गए तो भी लोकेशन पर ट्रैक हो ही रही है। तो अच्छी ऐप है, सबको अपने फोन में डाउनलोड करनी है। और किसी का कोई क्वेश्चन? हिम्मत प्लस ऐप, ठीक है। हाँ जी बोलो। बुक वाला जो आपने डिफेंस लगाया था ना, तो जल्दी से पॉसिबल एक के साथ करना और इतने इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव करते हैं कि आपने जो वाला बुक उठाया तो वो हेवी था, तो ठीक है उससे ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है ना। हमारे पास तो आपको वो सारे भी अटैक बताए, हमने एक चीज बताई है कि ये भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक पावरफुल नहीं है तो आप पेन से अटैक कीजिए। फिंगर टिप भी बताया गया, ये भी बताया था, फिंगर से अटैक कीजिए, ये कर सकते हो आप। जब आपकी 10 डेज की क्लास होगी तो बहुत सारी टेक्निक और बताई जाएगी, ये सिर्फ एक छोटा सा डेमो। फिंगर्स में आपके नाखून बड़े बड़े होते हैं, वो और ज्यादा इफेक्ट नाखून नहीं भी है तो टिप्स भी बहुत तेज लगती है। बुक्स का हमने इसलिए बताया कि ये भी हमारे पास ऑप्शन है। आपका माइंड अलर्ट होता है इन चीजों से कि मैं किन चीजों से अपना डिफेंस कर सकती हूँ। और जब 10 डेज की क्लासेस होती हैं तो उसमें तो आप लोग हमें बताते हो कि मैम ये भी है हमारे पास, इससे भी हम अपना डिफेंस कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और बताना चाहूंगी, जैसे कि आपने बताया कि आपके पास बुक पावरफुल नहीं है तो आप पेन से अटैक कीजिए। पेन से अटैक कीजिए, ये कर सकते हो आप। जब आप लोग हमें बताते हो कि मैम ये भी है हमारे पास, इससे भी हम अपना डिफेंस कर सकते हैं, ठीक है।
अब अगर देखो बाल हमारा, अगर कोई हमारे बाल पकड़ ले तो हम आसानी से किसी के कंट्रोल में आ जाते हैं। तो एक बार बालों का आप देखेंगे, इधर देखिए बातें नहीं, आगे से पकड़ लिया, ये बाल पकड़ लिए। तो इस सिचुएशन में हम कैसे डिफेंस कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमें अपने बालों को बचाना है, अपनी हाइट को हल्का सा नीचे करेंगे और अपने सबसे पहले बाल बचाने जरूरी है, ठीक है। ये कलाई से प्रेस करेंगे, उसका हाथ भी लॉक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, और हमारे बाल भी सेट हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा हाथ है, इसे कट मारेंगे एल्बो जॉइंट पर, और कहीं नहीं मारना, एल्बो जॉइंट पे ये कट मारना है। अभी आप लोग क्या करोगे, आप लोग ये करोगे, इससे नहीं छूटेगा, ठीक है। क्या करना है, पूरा क्रॉस करना है, एल्बो जॉइंट पे हमें ये कट मारना है पावर के साथ, हल्का सा साइड में होते ही फिर हम किक भी मार सकते हैं, ठीक है। हाथों के साथ साथ भगवान ने पैर भी दिए हमें डिफेंस करने के लिए, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये पीछे से पकड़ने के बाद तो इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, ठीक है, दोनों हाथों को पकड़ा और ये पावर के साथ क्रॉस करना है, ठीक है, दोनों हाथों की क्रॉसिंग करनी है। अब फिर आप कोई भी घुटना मार सकते हो, कोई भी अटैक कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से हम बालों का भी डिफेंस कर सकते हैं। इसके अलावा ठीक है, हमारे पास पकड़ लेते हैं, जैसे आपने चुटिया बना रखी है और चुटिया पकड़ ली है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में कैसे डिफेंस करना है? देखो लेफ्ट साइड स्पेस है, मोस्टली हम ये देखो ऐसे घूमेंगे और बस पावर के साथ। देखो पावर तो लगानी है आपको, ऐसा नहीं है कि भी सामने वाले ने भी पकड़ रखा है तो थोड़ी पावर तो आपको भी लगानी है, लेकिन टेक्निक के साथ अगर पावर लगाते हैं तो उसकी जो हमारी पावर है वो सामने वाले पे ज्यादा अप्लाई हो जाती है। मैम अगर किसी ने हमारा गला पकड़ा फिर एक हाथ से किसी ने गला पकड़ लिया हमारा, सबसे पहले दबाव भी आगे कम करेंगे, कितना ही टाइट पकड़ ले, पीछे जाएंगे। और अभी दोनों हाथों से अभी बताते हैं, यहाँ पे देखो ये ग्रिप बनाएंगे और जो पाम टेस्ट बताया था ना, ये मारेंगे आगे बढ़ेंगे, पेट पे मार सकते हैं, पंच मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो। वही ग्रिप नीचे जाएंगे, हाथ डालेंगे, ये पावर के साथ अटैक और भाग जाना है। और पीछे से अगर पीछे से इतना को गला पकड़ा फिर इसको जो बालों पे हमने अप्लाई किया था वही अप्लाई कर सकते हैं, ये करके, ठीक है। और आगे भी बढ़ सकते हैं, जैसे मैं आगे स्पेस तो आगे भी किक मार सकते हैं, हाथ फ्री है तो कहीं भी मार सकते हैं। अगर स्पेस कम है, पूरी बॉडी हमारे कंट्रोल में है, हमारा सर फ्री है, तो हम नोज पे तेज हिट कर सकते हैं। अगर नोज पे हिट कर दिया, एकदम से अंधेरा आता है आंखों के सामने, तो हमें कुछ टाइम मिल जाता है सामने वाले की जो उसने हमारे ऊपर जो एक्ट किया है उससे हम बच सकते हैं, ठीक है। जो अटैक किया है उससे हम भाई सर बच सकते का हैं, मतलब है हिट एंड रन, फाइट नहीं कर सकते किसी के साथ, ठीक है ना। आप लोगों को ये नहीं करना कि भाई अब तो बहुत सारे अटैक सीखे हैं, सारे आज अप्लाई करते जाओ। ये आपने सिचुएशन देखनी है कि सामने वाला गिर गया, अभी आप वहां से बच के भाग जाइए। सेल्फ डिफेंस का जो हमारा मेन फंडा है हिट एंड रन, ठीक है, हिट एंड रन। हमने अटैक किया और दौड़ गए वहां से, अपना डिफेंस करना है, ना कि सामने वाले के साथ फाइट करना है। और किसी का कोई क्वेश्चन? क्या अगर बहुत सारे लोग हो, उसके लिए हमारे कैंप होते हैं, 5 वेन्यू होते हैं समर में और विंटर में, तो उसमें हम फाइट सिखाते हैं। उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, फाइट सीखने की जरूरत है। जैसे हमारे चारों तरफ से अगर हमला हो गया तो हमें कैसे अपना डिफेंस करना है, मेंटर्स चाहिए उसके लिए, टपटक वाले काटा सिखाते हैं, मैम को तो जानकारी भी है। उसके लिए हम देखो इधर काटा सिखाते हैं, इधर जाना है, इधर जाना है, चारों तरफ, तो उसके लिए एडवांस ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग करने की जरूरत है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आप मतलब माइंड में रख के और जिनका यूज करके आप एक बड़े खतरे से बच सकते हैं।
सबसे ज्यादा तो अपने आप को अलर्ट रखना, आपका डिफेंस करना है, ठीक है। ये नहीं कि कानों में लीड लगा ली और हमें सराउंडिंग का पता ही नहीं है कि इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, अभी कौन चल रहा है। जैसे अभी इधर कोई बोल रहा है, इनको मतलब ही नहीं है, इनकी बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप भी चुप नहीं हो रहे, ठीक है। तो अगर घर से बाहर निकलते हो तो इनको अंदर डाल लो, क्योंकि जब देखो स्नैचिंग भी होती है, ऐसा नहीं होता कि कोई भी आया और ऐसे स्नैच करके ले गया, ठीक है। होता है, रेयर केसेस होते हैं, ज्यादातर क्या होते हैं वो फॉलो करते हैं, हमें देखते हैं, जब ये पता चल जाता है कि भाई हाँ यहाँ काम आसानी से हो सकता है, तो वो क्या करते हैं, ले गए। तो आप लोगों को अलर्ट रहना है, जब भी ट्रैफिक चल रहा है, अगर इस साइड से ट्रैफिक आ रहा है तो आप अपोजिट डायरेक्शन में चलिए, जब आप पैदल चल रहे हैं, क्योंकि पैदल चलते हुए आप Thank you so much to the Delhi Special Police Unit for Women and Children team for providing self-defense training techniques and tips. We are heartily thankful for this initiative taken by the Delhi Police to impart self-defense training to women and girls with the view of empowering them. This prepares women to deal with the situation at any point in case they don't have immediate help around, and then police must take time to react at this point. Ma'am, we would really appreciate if you would come on the stage, and Dr. Vipresh ma'am and Vinay Mehta sir, would you please do the honors of providing a mentor to the team?